ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلی ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ شہریوں کی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے پبلک سروس ڈیلیوری نظام کو مزید فعال بنانے پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا زور۔ نوجوان وکست جموں کشمیر اور وکست بھارت کے اہم ستون۔ جموں میں یوتھ کانکلیو 2024 کا افتتاح کرنے کے دوران ایل جی کا اظہار خیال۔ جموں کشمیر اور لداخ کے پورے مرکزی نظام والے علاقے بھارت کے لازمی اور ناقابل تسخیر جز۔ فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کونسل میں خطاب۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مد نظر وادی کے اسکولوں میں درس و تدریس کا عمل اب 4 مارچ سے ہوگا شروع۔ خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شہریوں کی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے پبلک سروس ڈیلیوری نظام کو مزید بہتر اور فعال بنانے، شکایات کا تیزی کے ساتھ سدباب کرنے اور فلاحی اسکیموں کی تیز تر اور مؤثر عمل آوری پر زور دیا ہے۔ ایل جی نے آج سول سیکریٹریٹ جموں میں ایل جی ملاقات کے تحت عوامی شکایت سننے کے حوالے سے ایک براہ راست پروگرام کے دوران لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ اس دوران انہوں نے جے کے آئی گرامز پورٹل پر درج کی گئی شکایت سے متعلق تفصیلات کے علاوہ عوامی رابطہ پروگراموں کے بعد کی گئی کارروائی رپورٹ متعلقہ انتظامی سیکریٹریوں، ڈپٹی کمشنروں اور دیگر سینئر افسران سے طلب کی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ عوامی رابطہ پروگراموں کا جائزہ لینے کے بعد مختلف شکایات کے ازالے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مختلف فیصلوں کو غیر جانبداری اور منصفانہ طور عملانے کی ضرورت ہے تاکہ سبھی اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہوں۔ مختلف شکایات کے حوالے سے لیفٹیننٹ گورنر نے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے اسکولوں، بالخصوص دور افتادہ علاقوں میں موجود اسکولوں میں تدریسی عملے کی دستیابی میں معقولیت لانے پر زور دیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر کو ہدایت دی گئی کہ ان دشوار گزار علاقوں جہاں پاور سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کو آر ڈی ایس اسکیم کے دائرے میں لایا جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ نوجوانوں کی طاقت وکست جموں کشمیر اور وکست بھارت کے لیے ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے آج جموں میں محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کی کوششوں کے تحت جے اینڈ کے یوتھ کانکلیو 2024 کا افتتاح اور انسپائر جینز اینڈ بیٹس کے دوسرے سیشن کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ ملک پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایل جی نے امید اور اعتماد ظاہر کیا کہ نوجوان پود اپنی منفرد صلاحیتوں اور ہنرمندی کے ذریعے ملک کے اس اہم سفر میں کلیدی رول ادا کرے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نوجوان امرت کال کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے نئی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی انتظامیہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنے کے لیے ایک موافق ماحول دستیاب رکھنے کی پوری طرح وعدہ بند ہے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کئی محکموں کی طرف سے قائم کیے گئے اسٹالوں کا معائنہ کیا اور مختلف اسکیموں کے تحت مستفید کنندگان کو تعیناتی کے حکم نامے بھی فراہم کیے۔ اس دوران ایل جی کے صلاح کار راجیو رائے بھٹناگر، ڈویژنل کمشنر جموں اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اے کے چودھری کو جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا حلف دلایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں راج بھون جموں میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے موصوف کو اس عہدے کا حلف دلایا۔ اس موقع پر کئی دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ جموں کشمیر کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے ترقی پسند کارخانہ داروں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے چھوٹے صنعتی یونٹ قائم کریں۔ موصوفہ نے آج پلائی سانبا میں ایک جانکاری پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ موصوفہ نے کہا کہ وزیر اعظم ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام اور جے کے رورل ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام اس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو ان کا بھرپور فائدہ ملے اور ان پروگراموں کی بدولت یہاں کی اقتصادیات بہتر ہونے کے علاوہ یہاں مثبت تبدیلی آئے۔ انہوں نے یوٹی میں دستیاب روزگار کے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے سبھی متعلقین کے سرگرم رول پر زور دیا۔ بعد میں موصوفہ نے بورڈ کی طرف سے پی ایم ای جی پی اور جے کے آر ای جی پی اسکیموں کے تحت منعقدہ ایک ای رکشا ریلی کو بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ محکمے کے انتظامی سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے آج سنبل بانڈی پورہ میں ایک عوامی دربار کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی شکایت کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے اور ان کا فوری طور سدباب کرنے کے لیے عوامی دربار ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ اس عوامی دربار کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر شکیل الرحمان بھی موجود رہے۔ انہوں نے افسر موصوف کو ضلع کے کلہم ترقیاتی منظرنامے کے حوالے سے جانکاری فراہم کی۔ اس دوران انتظامی سیکرٹری نے مختلف عوامی اہمیت کے حامل معاملات اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق لوگوں کی شکایات سنی۔ موصوف نے متعلقہ محکمے سے ایسا طریقہ کار اپنانے کی تاکید کی جس سے عوامی شکایت کا میعاد بند سدباب یقینی بن سکے۔ سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اویس احمد نے کل دوران رات شہر خاص میں زیر عمل مختلف پروجیکٹوں کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایس ایس سی ایل
और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान भी थे। इस मौके पर उन्होंने सभी मुतल्लिकीन के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर देते हुए सभी प्रोजेक्ट की मुकर्रर मुद्दत के अंदर तामीर को यकीनी बनाने की अहमियत उजागर की। उन्होंने सभी प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ सतहों पर हायल रुकावटों के हवाले से भी जानकारी हासिल की। श्रीनगर के हवल इलाके में कल शाम आग के खोलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए। बताया जा रहा है कि फिरदौस सिनेमा के नजदीक एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 3 दीगर मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। तहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। इस दौरान फायरमैन मुश्ताक अहमद जख्मी हुआ, जिसे फौरन ही नजदीकी अस्पताल इलाज और मुआवजे के लिए ले जाया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की हिदायत पर जिला इंतजामिया की टीम ने आज जाए वारदात का दौरा करके आग की इस होलनाक वारदात से हुए नुकसानात का जायजा लिया। टीम ने मुतासरीन को कंबलें, किचन सेट्स वगैरह और रेड क्रॉस फंड्स में से कुछ अबूरी इमदाद भी फराहम की। हंदवाड़ा के मावर इलाके में कल रात एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल किया। बताया जा रहा है कि मावर के चक आडूरा गांव में रूनमा हुए इस वाक़े में मुलजिम ने किसी तेज धार वाले हथियार का इस्तेमाल करके अपनी बीवी को कत्ल किया। पुलिस ने वाक़े के हवाले से बाज़ाब्ता केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सफाकदल श्रीनगर में आज सुबह एक शख्स ने दरियाई जहलम में छलांग लगाई। इस वाक़े के फौरन बाद बचाव कार्रवाई शुरू की गई और मज़कूर शख्स को तलाश करने के लिए 3 बोट भी काम पर लगाए गए। आखिरी इतलात मिलने तक उस शख्स को ढूंढने का काम जारी था। वादी कश्मीर के सभी अजला में 3 मार्च को मुनक्किद होने वाली पल्स पोलियो मुहिम के तीसरे मरहले के सिलसिले में आज श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से वाबस्ता एहलकारों और आशा वर्करों ने लाल चौक तक एक मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर सीएमओ श्रीनगर ने कहा कि मुल्क में पहले ही पोलियो का खात्मा किया गया है, लेकिन कुछ ममालिक में अभी भी ये बीमारी मौजूद है। इसके लिए किसी भी तरह की कोताही बरतना ठीक नहीं होगा। जवाहरपुरा लाम त्राल के लोगों ने कुदरती खूबसूरती से लबरेज इस इलाके को सियाहती नक्शे पर लाने और इसे सियाहती मकाम का दर्जा दिलाने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उनकी एक देरीना मांग को पूरा किया गया है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी बदौलत यहाँ मौजूद सियाहती वसाइल को पूरी तरह बर्रुए कार लाया जा सकता है, जिसके तुफैल मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और इलाके में इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। जवाहरपुरा लाम जब हमने लिस्ट में देखा तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जवाहरपुरा लाम की, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी डिमांड रही है, बहुत पहले से हमारी डिमांड रही है कि इस इलाके को सियाहती नक्शे पर लाया जाए, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आया है कि वो नाम जो है वो लिस्ट में आ गया है जवाहरपुरा लाम का, और उसको सियाहती नक्शे पर लाया गया है। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये हमारा ये एरिया टूरिस्ट मैपिंग में लाया। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल सीनरी है, यहाँ पे इलाके बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जो कि सीजनली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो अपनी सीनरी दिखाता है। यूटी में आज शाम से 3 मार्च दोपहर तक मौसम नासाजगार रहने के महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशीन गोई की है, जिसमें बताया गया है कि 1 और 2 मार्च की दरमियानी रात को जम्मू कश्मीर के मौसम पर मगरबी हवाओं का खासा असर रहेगा, जिसकी वजह से बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इम्कानी मौसमी सूरत-ए-हाल के मद्देनजर बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों, काश्तकारों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी एक वेट स्पेल का फोरकास्ट ऑलरेडी है और खासकर आज शाम से जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी से शुरू होगा और कुछ एक मैदानी इलाकों में भी आज रात को हल्की बारिशें हो सकती हैं। और इसी तरह कल जो है दिन में दरमियाना दर्जे की बारिशें, बर्फबारी पूरे पहाड़ी इलाकों के अंदर और मैदानी इलाकों के अंदर भी चलेगा। फिर फर्स्ट खासकर नाइट से लेकर सेकंड लेट नाइट तक इसका पीक एक्टिविटी है, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी और गस्टी विंड्स, तेज हवाएं भी चल सकती हैं यहाँ वैली के अंदर, खासकर जो मैदानी इलाके हैं। तो ओवरऑल जो है अभी एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं 3 फोरनून तक, और उसके बाद जो है वेदर में बेहतरी देखने को मिलेगा और लगभग 6 शाम तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं।
इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि कश्मीर डिवीजन में हायर सेकेंडरी सतह तक के सभी सरकारी और तस्लीम शुदा गैर सरकारी स्कूलों में तदरीसी काम काज अब 4 मार्च 2024 से शुरू होगा। हुक्मनामे में कहा गया कि फैसला महकमे मौसमियात की पेशीन गोई के मद्देनजर लिया गया है। 8 मार्च को मनाए जाने वाली महाशिवरात्रि के सिलसिले में जम्मू कश्मीर का महकमे मछली पालन 6 और 7 मार्च को जगती पुरखो, बूटानगर, मुट्ठी, तालाब तिलो, आनंद नगर, बोहरी, उदेवाला, टीआरटी, नगरोटा, सिद्रा, दुर्गानगर, जानीपुर, सुभाष नगर और गंगियाल वगैरह माइग्रेंट कैंपों में ट्राउट मछली फरोख्त कर रहा है। इसके अलावा महकमे के फिश फार्म दोमी अखनूर और गुमनासान में भी ये सहूलत दस्तयाब रहेगी। बट्टमालू श्रीनगर में मौजूद एसएसबी की 10वीं बटालियन ने बेमिना डिग्री कॉलेज में क्रिकेट प्रैक्टिस पिच कायम करने का काम काज शुरू किया है। बटालियन ने पहल बेमिना श्रीनगर के एक क्रिकेट क्लब की दरखास्त पर की है और इसका मकसद बेमिना और इसके मुल्क इलाकों के तलबा और नौजवानों को अपने खेल सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तयाब रखना और उनमें खेल कूद के हवाले से दिलचस्पी बढ़ाना है। बटालियन के कमांडर ने इस प्रोजेक्ट में ताउन देने के लिए बेमिना डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नजीर अहमद सिमनानी और दीगर मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया है। नई दिल्ली में रवा माह की 26 तारीख से शुरू हुए भारत टेक्स एक्सपो 2024 और ग्लोबल सिनेरियो और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इन सिल्क इंडस्ट्री मौजू के तहत मुनक़िदा बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में महकमे के एक नुमाइंदा वफ़द ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर मौसूफ ने बोलते हुए कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस सिल्क की तिजारत और मैन्युफैक्चर से वाबस्ता अफराद के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए आलमी सतह पर खरीदारों का दायरा भी वसी किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि इस एक्सपो में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह के मुख्तलिफ मंदोबीन ने शिरकत की। भारत ने फिर कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे मरकजी इंतजाम वाले इलाके भारत का लाजमी जुज है और नाकाबिल तस्खीर है। अव्वल सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतालिक काउंसिल के 55वें बाकायदा इजलास में जवाब देने का अपना हक इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इन इलाकों में अच्छी हुक्मरानी और समाजी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने की खातिर आईनी इक़दाम किए हैं। मौसूफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को कुछ भी कहने का कोई हक हासिल नहीं है क्योंकि यह भारत का अंदरूनी मामला है और इसका अटूट अंग है। अपने जवाब के आखिर में उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे मुल्क पर तवज्जो नहीं देना चाहता जिसके हाथ दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने की वजह से जाने जाते हैं। मुल्क भर के आला तालीमी इदारों में वोटरों में बेदारी पैदा करने की खातिर एक जामिया मुहिम मेरा पहला वोट देश किले का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा तादाद में नौजवान अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकें। इस मुहिम का असल मकसद नौजवान वोटरों को इस बात के लिए रागिब करना और उनकी हौसला अफजाई करना है कि वो मुल्क की भलाई की खातिर वोट दें और इसकी अहमियत को समझें। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।